ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ 1-1:30 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। 1 ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ 2:15 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ 2:20 ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਢਾਬਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੇਸਰ ਦਾ ਢਾਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਲ ਫਰਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਵੈਨੀ ਪਰਾਂਠਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦਾਲ ਫਰਾਈ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਵੈਨੀ ਬਟਰ ਪਰੌਂਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 250। दाल फ्राई नाल दाल फ्राई। सो ये दाल फ्राई है, सब तो ज्यादा फेमस है केसर का ढाबे। सो दाल फ्राई जरूर खाएगा आगे। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਢਾਬਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰਨੀ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਡਿਜ਼ਰਟ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ, बहुत स्वाद है। सो संगत जी आप जी दर्शन करो गुरुद्वारा गुरु के महल, निवास स्थान श्री गुरु रामदास जी अते प्रकाश स्थान श्री गुरु तेग बहादुर जी। सो ये गुरुआं दा पुश्तैनिक घर है ते इत्थे श्री गुरु तेग बहादुर जी तो इलावा और भी महापुरखां ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਕੇਸਰ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ 2021 ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਪਾਏ ਅਤੇ
ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਗਰੀ ਵਸਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ महल है। ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਹੈ। अंदर सच्चा नेहो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जा गुर देखा सामने। दर्शन करो गुरुद्वारा गुरु के महल। हुक्मनामा साहब तनासरी महला पहला छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तीरथ नावन जाओ तीरथ नाम है तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है अंग 687 धन गुरु नानक देव साहिब जी की बाणी है। दर्शन करो। जाना सो मैं हुण तुहानू गुरु साहिब जी के जन्म का इतिहास दसदा। सो गुरु साहिब जी ने माता गंगा जी और श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी के गृह गुरु के महल विखे अवतार धारिया। सो उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब जी हरमंदर साहिब विखे आसा दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। ये वही प्रकाश स्थान है भोरा साहिब। दर्शन कर सकते हो। गुरु साहिब जी के 400 साल प्रकाश गुरपुरब की खुशी विच ऐसे स्थान की विकार सेवा करवाई गई। इत्थे संगमरमर नवा लाया गया, इसनूं सुंदर बनाया गया, नवीनीकरण इसका होया। सो गुरु साहिब ने जदों अवतार धारिया उस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब जी श्री हरमंदर साहिब जी विखे आसा दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। सो अमृत वेले की गल है जदों गुरु साहिब ने अवतार धारिया। अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार कर्मी आवे कपड़ा नदरी मुख द्वार। सो गुरु साहिब जेड़े सन उन्होंने गुरु के महल पहुँच के दीवान की समाप्ति उपरंत इत्थे पहुँच के ते उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे बाल गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने जी दे चरण स्पर्श किए। सो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा त्याग करेंगे। सो इसलिए उन्हों का ना त्यागमल रखा गया। सो गुरु तेग बहादुर जी नूं शस्त्र विद्या बाबा बुड्ढा जी ने दी। सो शस्त्र विद्या के माहिर सन वो, इस करके उन्हों का नाम बाद विच तेग बहादुर रखा गया। सो तेग का अर्थ है किरपान। सो हुण इत्थे एक वड्डा सार बोर्ड लग्या होया है, जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी संखेप ब्यौरा गुरबाणी इस जग में चानन करम वसै मन आए। सो बाणी के रचेता का नाम है श्री गुरु नानक देव जी राय भोए की तलवंडी। 1469 तो 1539 ते राय भोए की तलवंडी विखे अवतार धारिया ते उन्हां दे 974 शब्द ने। इसे तरह श्री गुरु अंगद देव जी, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी, श्री गुरु तेग बहादुर जी, भगत शेख फरीद, भगत जयदेव, भगत त्रिलोचन, नामदेव, सदना जी, बेणी जी।
सो भगत रामानंद जी भी ने, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत पीपा जी, भगत सैन जी, भगत धन्ना जी, भगत भीखण जी, भगत परमानंद जी, भगत सूरदास जी, भाई मरदाना जी, बाबा सुंदर जी, राय बलवंड जी। सो भाई सत्ता जी भी सन, भट्ट कल सहार जी, भट्ट ग्यंद जी, भट्ट भीखा जी, भट्ट कीरत जी, भट्ट मथुरा, भट्ट जालप, सल जी, भट्ट भल जी, भट्ट बल जी, भट्ट हरबंस जी, भट्ट नल जी। सो कुल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 6 गुरु साहिबान, पहले दूजे तीजे चौथे पंजवें ਅਤੇ 15 ਭਗਤ ਤੇ 11 ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 31 ਰਾਗ ਨੇ। सो बाहर निकलन लगे हाँ गुरु के महल तो। सो संगत जी, आप जी गुरु साहिब जी के पावन स्थानों के दर्शन जरूर करो। अमृतसर आयो तो दर्शन का फल प्राप्त करके घर जाओ। इत्थे जोड़ा घर आ जाता साडा। असी जावांगे सब तो पहला गुरुद्वारा टोबा, सब तो पहला असी जावांगे गुरुद्वारा टोबा भाई शालो। उस तो बाद गुरुद्वारा साहिब लोहगढ़, किला लोहगढ़, ते फिर वापस होटल ते शामी रहराज साहिब जी दे पाठ वास्ते मंदिर साहिब। सो इथों असी लेफ्ट मुड़ जाएंगे। सो ये वापस केसर दा ढाबा वाली थां आ गई है। वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी का खालसा। सो ये सी गुरुद्वारा टोबा भाई शालो, जिथे भाई शालो जी श्री हरमंदिर साहिब जी की उसारी वास्ते पाथियां नाल इट्टां पकाउंदे सी, सेवा करते सी। इथों बाहर निकल के आप जावांगे गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब। सो संगत जी, गुरुद्वारा टोबा भाई शालो दियां गलियां तो लंघदियां ही असी पहुंच गए हाँ गुरुद्वारा किला श्री लोहगढ़ साहिब विखे। सो पापा ते मासड़ जी हले दवाइयां ले रहे ने ते मैं अपने नाना जी नाल इत्थे आ रहा। आप जी दर्शन कर सकते हो। सो असी आ गए हाँ गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब जी की पार्किंग अंदर। सो पैदल चल के अंदर जा रहे हैं। जोड़ा घर, अच्छा ए आ जाओ।
जोड़े तो असी अपने जोड़े इत्थे उतार के रख रहे हैं। सो पौड़ियां चढ़ के उत्ते जाना पैंदा है गुरुद्वारा साहिब विखे। ये गुरुद्वारे की जी बनतर है वो बिल्कुल किले वर्गी है ते ये गुरु साहिब वेले किला ही हुंदा सी। सो इत्थे श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक वो सिख गभरू जवानों नूं ट्रेनिंग दिंदे सन, जिवें कि शस्त्र विद्या होई, घुड़सवारी आदि। सो जेड़े भी Your destination is on the right. सो जेड़े भी स्थान श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे हुंदे ने उत्थे ये दो निशान साहिब लगे हुंदे ने, मीरी ते पीरी। श्री हरमंदर साहिब विखे अकाल तखत साहिब है, उस दे सामने भी मीरी पीरी दा निशान साहिब है, तुसी दर्शन कर सकते हो। ते एक एंट्रेंस इत्थे मेन रोड तो भी है। हुक्मनामा पढ़ के अंदर जाते हैं। दोए दीवे 14 हट नाले, जीते जी तत्ते बन जा रे, खुले हट हुआ व्यापार, जो पहुंचे सो चलन हार। सो आप गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करिए। धन धन रामदास गुरु जी सिरियाती ने सवारिया, गुरुद्वारा लोहगढ़ साहिब। सो गुरुद्वारा साहिब दे दर्शन कर ले। हुण असी जावांगे वापस अपने होटल ते करीब 5 साढ़े 5 बजे वापस हरमंदर साहिब। तो पौड़ियाँ उतर के बाहर आ गया। वापस मैं जोड़े लेना ते चलते हैं। सो जोड़े जमा करा के इत्थे आ गया। मैं इत्थे अकेले ही हाँ ते मासी मासड़ जी पिछे आ रहे ने मस्कीन नूं लैके। सो भाई साहब जी की आवाज़ सुन के लगता है कि ये गुरमीत सिंह जी शांत हैं, जो कि विश्व प्रसिद्ध महान कीर्तनीय हैं ते उन्हों का कीर्तन सुनने का मौका मिलेगा, रागमई कीर्तन सुनने का मौका मिलेगा। सो आओ आप अंदर चलते हैं। जी गुरु रामदास जी की पूरी मेहर है कि मैं सोदर की चौंकी तो लैके हुक्मनामे तक अंदर ही सी, रागियां दे पिछे बैठा होया सी ते वो सेवादार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मैनू बिठा दिता। मैं अति धन्यवादी हाँ। सो हुण आपां डिनर करन जावांगे ते आप जी नूं बाद च मिलते हैं। एक बारी दर्शन करो।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ